Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Welcome to the NEET Finishing Touch 2023 Sky classes. I am Sohaib sir and I will start the inorganic portion of the chemistry. And today we will be discussing mainly two chapters, that will be D and F block and coordination chemistry. As far as NEET Finishing Touch series is considered, तो इसमें इस बात का हमने ध्यान रखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो क्वेश्चंस होने चाहिए एनसीईआरटी ओरिएंटेड. And I have put on a lot of efforts to select those questions which will be helping you when you are trying to finish the preparation for the NEET. इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे तो वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी ओरिएंटेड होंगे और टेक्स्ट बुक की जो लाइंस है उनके सॉल्यूशंस आपके सामने हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट first question of D and F block. The question is as displayed on the board. The element which has highest melting point among the following is. So we have to select that element among these four which has got highest melting point in the in the 3D series or first transition series. इनमें कौन सा element ऐसा है जिसका melting point सबसे ज़्यादा? So first of all, we should know melting point of transition metals decide कैसे होता है. Melting point of transition metals, since ये metals है, it is decided by the melting point. The melting point is decided by the metallic bonding. और metallic bonding depend किस पे करता है? Metallic bonding depends upon size of kernel as well as number of delocalized or valence electrons. तो किस केस में, जिस केस में कर्नल का साइज यानी मेटल का साइज कम होगा और नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. एज अ रिजल्ट उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. नाउ ट्रांजिशन मेटल्स की ये खासियत है, स्पेशलिटी है, विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द टेंडेंसी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल टू शो मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस. So increase in the number of unpaired electrons increase the strength of metallic bonding. As a result of that, melting and boiling points will increase. Now as far as these metals is considered, if we say chromium, if we take chromium, as far as chromium is considered, chromium has configuration of 3d5 4s1 valence shell configuration. Then if we go to manganese, manganese has configuration of 3d5 4s2. Molybdenum, it belongs to second transition series, that is 4d series. As far as its configuration is considered, its configuration matches with the chromium. Its configuration is 4d5. And if iron is to be considered, the configuration of iron in this case, it is 3d6 and 4s2. Now in the first transition series, as we move across the period, number of unpaired electrons increase. As a result of increase in the number of unpaired electrons, melting and boiling points continuously increase. And we get a graph like this. If you plot it like this, यहाँ से melting point हम plot कर लेंगे, यहाँ से atomic number plot कर लेंगे, we get a graph like this for the first transition series. If this is starting element scandium, then is a final element zinc. इस point पे वो वाला element होगा जिसके number of valence electrons सबसे ज़्यादा. And here we have got chromium. It is because chromium has got maximum number of unpaired electrons. Then at the chromium के बाद जो element आता है manganese, up to zinc, it will then finally decrease because of pairing of the electrons. Manganese is here. Manganese shows dip in the melting point. The reason behind that, it has got complex crystal structure
as well as it contains completely half-filled configuration. As a result of that complete half-filled configuration, less number of electrons get involved in metallic bonding. So this is about first transition series. But out of 4 options, we have got one option that belongs to second transition series. So this graph is repeated for second transition series also. But the melting points of second transition series are greater than the melting points of first transition series. Molybdenum and chromium, they belong to same period. They belong to, same group. As a result of that, just like chromium shows highest melting point in first transition series, in second transition series, it is molybdenum which shows highest melting point because of the maximum number of unpaired electrons. Then after molybdenum, we have got technetium. Technetium में भी मैग्नीज की तरफ dip in melting point आ जाता है. Now our question was, इनमें से सबसे ज़्यादा melting point किसका है? If we take chromium, molybdenum, manganese, iron, out of 4, 3 elements belong to first transition series and only 1 element belongs to second transition series. Among first transition series, if we say it is chromium which has got highest melting point because of the maximum number of unpaired electrons. But one of the element, that's molybdenum, it belongs to second transition series and the melting points of second transition series are greater than the first transition series. As a result of that, out of all these options, the element with maximum melting point is second option, that is molybdenum. Okay? So before going to the next point, as far as melting point of transition metals is considered, across the period, the melting points first increase with increase in the number of unpaired electrons, then it finally decreases because of decrease in the number of unpaired electrons. But the second important point is the melting point of third transition series is maximum and the first transition series is minimum. So melting points का order जो होगा third transition series यानी 5D series greater than 4D series greater than 3D series. That's why molybdenum out of all these has got maximum melting point. Let's move to next question. As far as next question is considered, that is displayed on the board. The question states like this: incorrect statement among the following is. We have been given 4 options and we have to see इनमें से कौन सा option incorrect है. If you go to the first option, many trivalent lanthanoid ions are colored both in solid as well as in aqueous solution. Let's see. Color. The reason for color are those transitions which occur in the visible region of electromagnetic spectrum. There are so many transitions, and the noted transitions that occur are D transitions and FF transitions. So question is about lanthanoids. So if we take lanthanoids, the reason responsible for color in the lanthanoid is FF transition. This FF transition. The statement states many trivalent lanthanoid ions are colored both in the solid state as well as aqueous solutions. The reason for color is FF transitions. और FF transition कब possible होगा? जब F orbitals partially filled होगी, except F0 and F14. ट्रांजिशन मेटल्स कलर दिखा सकते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स. सो इफ वी से स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर हम इसको क्लियरली देखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन सॉलिड एज वेल एज in aqueous solution contain partially filled f orbitals. As a result of that, they will be colored. तो ये वाला statement perfectly correct है. Let's go to the second. Due to lanthanoid contraction, the atomic radii of zirconium and is almost identical with hafnium. Zirconium and hafnium, they belong to same group. That is group number 4. If we go to the first transition series, it's scandium followed by titanium. If we go to second transition series, it is yttrium followed by zirconium. If we go to third transition series, it is lanthanum followed by hafnium. Now, as we move down, the group size increases. But
In this case, what happens? The size of second transition series and third transition series remains same. The reason behind that is lengthenoid contraction. So zirconium और hafnium में जो size होता है, that's almost identical because of lengthenoid contraction. तो statement second अगर हम देखेंगे, due to lengthenoid contraction, the atomic radii of zirconium is almost identical with hafnium. So this statement is again correct statement. Let's move to the third. Majority of the lengthenoid ions are diamagnetic. We know that diamagnetic are those compounds, those ions which contain all the electrons in paired form. और इसका अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात कर लेंगे, लेंथेनॉइड्स में n नंबर ऑफ अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर पैरामैग्नेटिक. बट द स्टेटमेंट सेज दैट मेजॉरिटी ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर डायमैग्नेटिक. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा मेजॉरिटी ऑफ द लेंथेनॉइड आयंस आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन्स. Fourth point, mish metal is an alloy of lanthanoid metal. Definitely one of the known alloy of lanthanoids is mish metal. Mish metal में एक तो lanthanoids होते हैं 95% and iron होता है 5% along with some traces of some non-metals like carbon. ठीक है. So mish metal is well known and most widely used alloy of lanthanoids. So definitely statement 4 is correct. Mish metal is an alloy of lanthanoid metal. तो ये वाला statement भी correct है. हमारा question था the incorrect statement among the following is out of 4, 3 statements are correct and the third one is incorrect. तो इसका correct option ये होगा third. ठीक. Now let's move to the next point. Next question. Our next question जो है that is this one. Magnetic moment 3.87 Bohr magnetons is given by atomic number, given that atomic number of manganese 25, vanadium 23, chromium 24, cobalt 27. इनमें से, इन आयंस में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 होगा? ठीक. सो 3.87 इज द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट. इस एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम कंपेयर करेंगे इन आयंस के साथ एंड लेट्स सी कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आ जाता है. एज फार एज क्रोमियम इज कंसिडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1. But here ion is chromium dipositive. Chromium dipositive means it is 3d4. And if we say 3d4, it means it contains 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons. इसमें 4 unpaired electrons है. और 4 unpaired electrons बाद में कंपेयर कर लेंगे 3.87 के साथ. Now let's go to the manganese dipositive. Manganese dipositive. If we go to the configuration of manganese, manganese की configuration होती है 3d5 4s2. So manganese dipositive becomes 3d5. 3d5 का मतलब इसके पास 5 unpaired electrons. Now going to the third one, it's cobalt 3 positive. Cobalt 3 positive. Cobalt का जो electronic configuration है that is 3d7 4s2. But cobalt 3 positive is 3d6. 3d6 का मतलब 4 unpaired electrons. Now last is vanadium dipositive. Vanadium dipositive की जो electronic configuration है it is 3d3 4s2. If we remove 2 electrons इसकी configuration बनेगी 3d3. इसका मतलब इसके पास 3 unpaired electrons है. So these are the number of unpaired electrons. In case of chromium dipositive, we have got 4 unpaired electrons. In case of manganese dipositive, we have got 5 unpaired electrons. In case of cobalt 3 positive, we have got 4 unpaired electrons. And in case of vanadium dipositive, we have got 3 unpaired electrons. Now question states that किसका magnetic moment 3.87 के बराबर होगा? We know that magnetic moment
is calculated by spin only formula, and that is root of n into n plus 2 Bohr magnetons, where n represent करता है number of unpaired electrons. So experimental value is 3.87. So 3.87 is around root 15. रूट 15 का मतलब n का वैल्यू होना चाहिए 3, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 3. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो बताओ इनमें से किस ऑप्शन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. पहले में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तीसरे में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैनेडियम डाई पॉजिटिव. इट इज बिकॉज 3.87 कॉरस्पॉन्ड्स टू रूट 15, और रूट 15 को जब आप सॉल्व करोगे n का वैल्यू आ जाएगा 3. सो इसका मतलब ये वो आयन होगा जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दैट आयन इज वैनेडियम डाई पॉजिटिव. ठीक है, दिस वाज अवर थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So if we were going to the next question is displayed on the board, and it is like this. The incorrect statement, I think we have discussed this. Next question is like this. The question states like this: which ion is not stable in aqueous solution? Out of the 4 options, one of the option is that जो aqueous solution में water में stable नहीं होता है. Now let's go to the different options. Manganese 2 positive, cobalt di positive, copper positive, and iron 2 positive. ठीक है. This is the statement line from the textbook. कॉपर पॉजिटिव जो होता है, जो ही ये एक्वस मीडियम में जाता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. जो ही ये एक्वस मीडियम में जाता है, इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन. इट फॉर्म्स कॉपर एंड कॉपर डाई पॉजिटिव. कॉपर डाई पॉजिटिव क्यों बनता है? क्योंकि कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर डाई पॉजिटिव इन केस ऑफ वाटर इज फेवरेबल, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव हैज गॉट हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. तो उस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलने की वजह से वाटर ज्यादा स्टेबलाइज करता है कॉपर डाई पॉजिटिव को इन कंपैरिजन टू कॉपर पॉजिटिव. सो कॉपर पॉजिटिव जो ही वाटर में जाएगा, it automatically undergoes disproportionation. It results in the formation of copper and copper di positive. बाकी जितने भी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वाटर में, दे आर स्टेबल. बट कॉपर पॉजिटिव इन वाटर ये खुद ब खुद डिस्प्रपोर्शनेशन करता है, और उसका वजह है कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट्स मोर बिकॉज ऑफ +2 चार्ज. तो वाटर के साथ कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा इंटरेक्शन कर लेता है, तो कॉपर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. इट बिकम्स अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर 2 पॉजिटिव. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन. चलिए, लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसके बहुत ज्यादा आने के चांसेस इस साल है. दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. द क्वेश्चन रीड इज लाइक दिस: द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर अमंग द फॉलोइंग. इनमें से किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है? परमैग्नेट है, it's dichromate, it has been mistake, it is Cr2O7 di-negative, it's Cr2O7 dichromate, permanganate, and VO3, it should be VO2 positive, not VO3, it's VO2 di positive. Now let's see कि इनमें किसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा है. MnO4 negative permanganate in the form of potassium permanganate is one of the strong oxidizing agents. Second one जो है that is dichromate Cr2O7 2 negative. Third one है VO2 positive. Oxidation state of manganese in first case +7. Chromium oxidation state +6.
vanadium oxidation state +5. All these three elements are present in their maximum possible oxidation states. We know that potassium permanganate behaves as an oxidizing agent in different mediums, alkaline medium, neutral medium, as well as acidic medium. In acidic medium, potassium permanganate gets reduced to form manganese dipositive. Potassium dichromate in the form of dichromate ion, it gets reduced to form chromium 3 positive. And vanadium gets reduced to form vanadium 3 positive. यह है इनके reduced species. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्ड, लोअर स्पीशीज फॉर्म्ड. जो रिडक्शन इनकी रिडक्शन होने के बाद जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है वो कहां ज्यादा स्टेबल है, वो कहां कम स्टेबल है, ये डिसाइड करेगा इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. इफ वी गो फॉर द मैग्नीज, इट मूव्स फ्रॉम +7 to +2 and chromium +6 to +3, vanadium +5 to +3. इनमें से, इन तीन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, लेट्स चेक दिस. जिसका ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बनने के चांसेस ज्यादा है. और जब ऑक्सीडेशन स्टेट के बनने के चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा. मोर इजिली इट गेट्स रिड्यूस्ड and more will be the oxidizing character. So I will say oxidizing character of all the three ions is directly proportional to stability of lower oxidation state formed. Lower oxidation state formed. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, वही डिसाइड करेगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. अब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इन तीन में से सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है. इफ वी गो टू मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज D5 कॉन्फिगरेशन. इफ वी गो टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इट बिकम्स D3 कॉन्फिगरेशन. And if we go to vanadium 3 positive, it becomes D2 configuration. Now, out of all these configuration, I think the most stable configuration is a D5 because it's half filled configuration. इसका मतलब मैग्नीज 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा मैग्नीज 2 पॉजिटिव ग्रेटर दैन क्रोमियम 3 पॉजिटिव. क्रोमियम 3 पॉजिटिव becomes T2G3 configuration. Very important. जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिंग होती है, we get T2G and EG configuration. So d orbitals are split into two sets of orbitals. The lower set is called as T2G and the higher set is called as EG. Since it has got D3 configuration, it becomes T2G3 configuration. जब ये T2G3 configuration होगा, so D3 की भी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, but not as stable as D5. तो इसका मतलब है क्रोमियम 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल. अब लास्ट पॉइंट पे आता है वेनेडियम डाइपॉजिटिव. वेनेडियम 3 पॉजिटिव, इट D2 कॉन्फ़िगरेशन. इस D2 कॉन्फ़िगरेशन की कोई भी स्टेबिलिटी एसोसिएटेड नहीं है. सो आउट ऑफ ऑल दीज 3 कॉन्फ़िगरेशंस, मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज मैक्सिमम स्टेबल, फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड फाइनली वेनेडियम 2 पॉजिटिव. सो मोस्ट स्टेबल इज मैग्नीज डाइपॉजिटिव एंड लीस्ट स्टेबल इज वेनेडियम डाइपॉजिटिव. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैग्नीज 2 पॉजिटिव है. इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाएगा परमैंगनेट, फिर दिखाएगा डाइक्रोमेट और फिर दिखाएगा VO2 पॉजिटिव. सो आउट ऑफ ऑल द 3, दैट आयन हैज गॉट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। और यही पॉइंट टेक्स्ट बुक ने लिखा हुआ है, द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ दीज आयंस इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज फॉर्मड। लोअर स्पीशीज फॉर्मड आर दिस, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा MnO4 नेगेटिव, फिर डाइक्रोमेट एंड देन VO2 पॉजिटिव। सो इनमें से अगर हम देखेंगे सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है MnO4 नेगेटिव ग्रेटर देन Cr2O7। तो इसका मतलब है इसका फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस, which among the following has largest metallic radius? Important और आसान भी है। तो this question is about the atomic size of transition elements. Along the transition, what is happening to the size? If you have gone through the textbook, the atomic size of transition elements shows variation like this. If I plot atomic size here, and then we plot atomic number from this, we get a graph like this. First decrease, then nearly same, at the end finally increase होता है। ये पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, और मैग्नीज तक रेगुलर डिक्रीज हो जाता है। देन आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। देन कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। तो स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन आयरन, कोबाल्ट, निकल इस सीरीज में साइज रहता है सेम। वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and sigma screening effect nearly balance each other. At the end size increases because of electron electron repulsions. Now आपके पास 4 एलिमेंट्स है। इन 4 एलिमेंट्स में साइज का वेरिएशन आपके सामने है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मैक्सिमम साइज, लार्जेस्ट मेटेलिक रेडियस किसकी है। इफ वी गो, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, मैग्नीज। स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। इसका मतलब है इनमें सबसे ज्यादा होगा स्कैंडियम का साइज, स्कैंडियम के बाद होगा टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, और वेनेडियम के बाद मैग्नीज। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक रेडियस जो होगी वो होगी स्कैंडियम की। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, एसिडिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स है। And generally we say that metal oxides are generally basic, but we know that बहुत सारे metal oxides amphoteric भी होते हैं और बहुत सारे metal oxides acidic भी होते हैं। तो acidic character किस वजह से increase होता है? Simple formula है, acidic character of any metal oxide is directly proportional to oxidation state. Acidic character is directly proportional to oxidation state. Acidic character is directly proportional to oxidation state. As oxidation state of metal increases, acidic character increases. ये तो general trend है। This is applicable also for the non-metals with increase in oxidation state, acidic character increases. लेकिन metals में तीनों टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे, बेसिक भी मिलेंगे, एम्फोटेरिक भी मिलेंगे और एसिडिक भी मिलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है? गोइंग फॉर द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, +1, +2, +3, इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी ऑक्साइड होगा दैट इज बेसिक। +4 में जो ऑक्साइड होगा वो होता है एम्फोटेरिक। एंड +4 ऑनवर्ड्स,
+5 हो, +6 हो, +7 हो एंड इवन +8 ऑस्मियम के लिए भी ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। नाउ +3 तक बेसिक, +4 में एम्फोटेरिक, +5, +6, +7, +8 में एसिडिक। बट रिमेंबर, दो ऑक्साइड्स का ध्यान रखिएगा। Cr2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये वाला ऑक्साइड दिखाता है एम्फोटेरिक कैरेक्टर। एंड अनदर ऑक्साइड V2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये वाला भी दिखाता है एम्फोटेरिक कैरेक्टर। रेस्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसाइड कर सकते हो आराम से। गोइंग टू द फर्स्ट वन, V2O3 ऑक्सीडेशन स्टेटस +3, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। CrO ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होगा। सॉरी, पहला भी बेसिक ऑक्साइड होगा, दूसरा भी बेसिक ऑक्साइड होगा। +3, +2 बेसिक ऑक्साइड। इफ यू गो टू CrO3 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका मतलब ये वाला ऑक्साइड होगा एसिडिक। Cr2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 में जनरली ऑक्साइड होता है बेसिक, लेकिन मैंने आपको दो ऑक्साइड्स याद रखने के लिए बोला है, दैट इज Cr2O3 and V2O5. Cr2O3, although it contains +3 oxidation state, so it should have been basic, but Cr2O3 it's amphoteric oxide. Now looking at the question, हमारा क्वेश्चन था एसिडिक ऑक्साइड among the following, इनमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? एंड एसिडिक ऑक्साइड इज क्लियर, फर्स्ट वन इज बेसिक, सेकंड वन इज बेसिक, फोर्थ वन इज एम्फोटेरिक। तो एसिडिक खाली एक ही है, दैट इज CrO3। एंड CrO3 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करा लेते हो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन H2CrO4। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमिक एसिड एंड हेंस दिस ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए let's move now to the next question. So next question जो हमारा है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। The iron which is colorless in aqueous solution, कौन सा आयन इनमें से है जो कलरलेस होता है? ये ट्रांजिशन मेटल आयन्स है। ट्रांजिशन मेटल आयन्स में जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, दैट इज DD ट्रांजिशन। दिस इज DD ट्रांजिशन, मेन फैक्टर। इसके अलावा भी होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, पोलराइजेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, बट द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इज DD ट्रांजिशन। जहां जहां DD ट्रांजिशन होगा वहां कलर आएगा, और जहां DD ट्रांजिशन नहीं होगा वहां कलर नहीं आएगा। DD ट्रांजिशन पर्टिकुलरली दो केसेस में नहीं होता है, एक D0 में और दूसरा D10 में। D0 में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, and D10 में all the electrons are occupied in the orbitals, so as a result these two configurations do not show color. Let's see कि इनमें से कोई configuration आ रही है। अगर इनमें कोई configuration आएगी उसमें DD transition नहीं होगा, और जब DD transition नहीं होगा so color is not possible. If we go to manganese 2 positive, manganese 2 positive is D5. D5 का मतलब color is possible. Nickel 3 positive, nickel 3 positive का मतलब है D7 configuration। D7 कॉन्फ़िगरेशन में भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव इज D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 कॉन्फ़िगरेशन में भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, सो कलर इज पॉसिबल। जिंक 2 पॉजिटिव, इफ वी गो टू जिंक 2 पॉजिटिव, इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन, एंड वी नो दैट D10 कॉन्फ़िगरेशन cannot show DD transition and hence color is not possible. So out of all the options, first 3 can show DD transition and they can give color, and the fourth option is that option जिसमें DD transition possible नहीं है, इस वजह से इसमें color नहीं आएगा। तो इसका जो correct option है, that's fourth option, zinc 2 positive. Let's move now to next question. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, लैंथेनॉइड्स में हाइड्रोक्साइड्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? लेट्स फर्स्ट सी how we decide the basic strength of the hydroxides. The basic strength of hydroxides, बेसिक स्ट्रेंथ किसी भी हाइड्रोक्साइड के लिए, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल हो या S ब्लॉक हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल।
जहां पे मेटल का साइज ज्यादा होगा वहां पे बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ज्यादा, जैसे लिथियम और सीजियम में सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। इट इज बिकॉज सीजियम का साइज ज्यादा है और लिथियम का साइज छोटा है, तो सीजियम का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है, लिथियम का कम है। सो जहां पे मेटल का साइज ज्यादा है वहां पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। नाउ वी हैव टू सी कि इनमें किसका साइज ज्यादा है और किसका साइज कम है। इफ यू गो टू द लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स में जो लेंथेनॉइड्स जो 14 एलिमेंट्स की, इनकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो टू द लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट आता है सीरियम, फिर आता है प्रेजियोडाइमियम, फिर आता है नियोडाइमियम, फिर आता है प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम इज द एलिमेंट देयर। तो यूरोपियम आता है, यूरोपियम के बाद आता है गैडोलिनियम, फिर आता है डिस्प्रोजियम, फिर आता है हॉल्मियम, फिर आता है टर्बियम, फिर आता है यूटर्बियम एंड ल्यूटीशियम। तो यूरोपियम, गैडोलिनियम, दो एलिमेंट्स कौन कौन सा है? टर्बियम है, यूटर्बियम है, गैडोलिनियम है और यूरोपियम। तो पहले यूरोपियम आता है, गैडोलिनियम आता है, फिर आता है टर्बियम और फिर आता है ल्यूटीशियम। यह है सीक्वेंस लेंथेनॉइड्स की सीक्वेंस। सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, यूटर्बियम, ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम लास्ट वन है, फिर टर्बियम, गैडोलिनियम, यूरोपियम। तो ये सीक्वेंस है इन 4 लेंथेनॉइड्स की, जो 4 लेंथेनॉइड्स यहां पे दिए गए हैं। दूसरी बात, लेंथेनॉइड्स का जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3, इसका मतलब ऑल दीज हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द फॉर्मूला MOH3। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप इनका बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं, वो है lengthenoid contraction. Across, when we move across the lanthanoids, their ionic size decreases due to improper shielding of f electrons. This decrease in the ionic size of lanthanoids is called as lanthanoid contraction. इसका मतलब है जो पहला lanthanum है that is cerium 3 positive और लास्ट वन जो है lutetium 3 positive, size gets decreased because of lanthanoid contraction. तो जो पहला लेंथेनॉइड है इसका साइज ज्यादा है, अगर इसका साइज ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और लास्ट वाले का साइज कम है, तो अगर साइज कम है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सो इसका मतलब एज वी मूव अक्रॉस द लेंथेनॉइड्स देयर इज डिक्रीज इन द साइज, एज अ रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ विल आल्सो डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा यूरोपियम, यूरोपियम के बाद होगा गैडोलिनियम, फिर होगा टर्बियम और फिर होगा ल्यूटीशियम। तो यूरोपियन शुड बी एट द फर्स्ट, यस यूरोपियम इज एट द फर्स्ट। दो ऑप्शंस में है यूरोपियम फर्स्ट पे, लेकिन दूसरे पे आना चाहिए गैडोलिनियम, यहाँ गैडोलिनियम यहाँ टर्बियम है। इसका मतलब है option 4 is the correct option. It is because across the period, when we move across the lanthanoids, atomic size decreases because of lanthanoid contraction. As a result, the basic strength will decrease. तो इसका basic character maximum होगा और इसका basic character minimum होगा। ये हो गया हमारा lanthanide hydroxide का strength, and this is very very important and it has been asked so many times. Let's move to the next question. मैच द फॉलोइंग। पिछले साल का जो पेपर था केमिस्ट्री में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे मैचिंग का सवाल आया था, और ये सवाल हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए ताकि आपको इन क्वेश्चंस पे नजर बने। कॉलम 1 इट्स कैटलिस्ट्स एंड कॉलम 2 इट इज द प्रोसेसेस जिनको ये कैटलिस्ट्स कैटलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट्स आर गिवन और ये नेम्ड कैटलिस्ट्स है। तो फर्स्ट कैटलिस्ट जो है दैट इज निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन। और ऑर्गेनिक में हम बार बार यूज करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, दैट्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सो ऑन। ये कहां करता है? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडक्शन। अब यहां से देखेंगे हम कहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडक्शन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इट्स पॉलीमराइजेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो सल्फ्यूरिक एसिड का सिंथेसिस है। वेजिटेबल ऑयल टू घी, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेजिटेबल ऑयल्स में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और घी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स टू एल्केन्स। इसका मतलब है निकल का जो मैच होगा वो होगा इसके साथ।
Second, cuprous chloride. Cuprous chloride. As far as cuprous chloride is considered, Ziegler-Natta catalyst polymerization उसमें लगता है, Ziegler-Natta catalyst में लगता है tri-alkyl aluminium plus titanium chloride. That's not there. cuprous chloride किसके साथ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है दैट्स V2O5. ठीक है. वेजिटेबल ऑयल टू घी एंड दैट्स कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम. हैबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है. सैंडमियर्स रिएक्शन ऑर्गेनिक की रिएक्शन है. इट इज रिएक्शन ऑफ डायazonium सॉल्ट विथ क्यूप्रस हैलाइड्स, मेनली क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड. तो अगर मैं Ziegler-Natta कैटलिस्ट देख लेता हूं, Ziegler-Natta कैटलिस्ट कंटेन्स ट्राई-अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड. आई थिंक दैट्स लास्ट वन. ये है इसके साथ मैच. Contact process, manufacture of sulfuric acid, the catalyst used is V2O5. ये है इसके साथ मैच. Vegetable oil to ghee, that's nickel in presence of hydrogen. ठीक. Haber's process, it is finely divided iron. And Sandmeyer's reaction में use होगा cuprous chloride. Again, if we go to the matching of these, Ziegler-Natta catalyst, इट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन टू फॉर्म पॉलीथीन. उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट्स TiCl, टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम. contact process, manufacture of sulfuric acid, the catalyst used is V2O5, that's there. Vegetable oil to ghee, it is simply conversion of carbon-carbon, double bond to carbon-carbon, single bond by the addition of hydrogen, and that is done by catalytic reduction, hydrogen in presence, nickel. Then Haber's process, one of the important, that synthesis of ammonia, उसमें catalyst होता है finely divided iron. And last one is Sandmeyer's reaction. It is diazonium salts in presence of cuprous halides. तो ये diazonium salt होता है, उसको जब आप treat करते हो Cu2x2 के साथ, it results in the formation of haloarenes. तो इसमें जो reagent use होता है, that's cuprous halide. So this was matching type question. Now let's move to another question. फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है. Let's go to the matching question. If we go to the first part, an element which can show +8 oxidation state, 3D element that can show oxidation state up to +7, and third is 3D block element with highest melting point. First of all, an element which can show +8 oxidation state. +8 oxidation state is shown by 3 elements in the periodic table. First one is osmium. The compound formed is OSO4. Second one is ruthenium, Ru4. And third is P block, that is xenon. यही 3 एलिमेंट्स +8 दिखाते हैं. अब इनमें से देखिए, इन 3 में से कौन सा है? ऑस्मियम है, तो इसका मतलब है इसका मैच ऑस्मियम के साथ हो जाएगा. सेकंड, 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +7, एंड दैट +7 इज शोन बाय ओनली वन एलिमेंट, एंड दैट इज मैग्नीज. तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में खाली दिखाता है मैग्नीज. एंड थर्ड, 3D ब्लॉक एलिमेंट विथ हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ये हमारा पहला क्वेश्चन भी था. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में जो होता है दैट इज क्रोमियम. क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है, इस वजह से इसका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा क्रोमियम. तो ये था मैचिंग क्वेश्चन. लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है. मैच द प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2. Lanthanoid which shows +4 oxidation state, lanthanoid which can show +2 oxidation state, radioactive lanthanoid, lanthanoid which has 4f7 electronic configuration in +3 oxidation state, and lanthanoid which has 4f14 electronic configuration in +3 oxidation state. Now for that I need to go to the configuration of lanthanoids. As far as lanthanoids electronic configuration is considered, सीरियम इज द लैंथेनॉइड जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f1 5d1 6s2 और इनर कोर इसका होता है xenon. लुटीशियम इज द लास्ट एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 4f14 5d1 6s2. यूरोपियम इज द लैंथेनॉइड जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d0 6s2. एंड गैडोलिनियम इज द लैंथेनॉइड जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है xenon 4f7 5d1 6s2. I have not written the electronic configuration of promethium. प्रोमीथियम अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात कर लेंगे, लैंथेनॉइड्स में पहला एलिमेंट है सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम फोर्थ लैंथेनॉइड है. तो फोर्थ लैंथेनॉइड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बनता है 4f4 5d0 6s2. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी प्रोमीथियम की. नाउ लेट्स गो टू द मैचिंग टाइप कॉन्फ़िगरेशन. लैंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर लेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 6s, देन बारी आएगी 5d की, देन बारी आएगी 4f की. अगर हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4f2, और 4f2 में ऐसा कोई स्टेबिलिटी फैक्टर एसोसिएटेड नहीं है. इफ यू गो टू द सीरियम, अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, यहां से 2, यहां से 1, यहां से 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी xenon कॉन्फ़िगरेशन. तो xenon कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल है. इसका मतलब है सीरियम हैज द टेंडेंसी टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ गोइंग टू द ल्यूटीशियम. ल्यूटीशियम की अगर हम बात करेंगे, ल्यूटीशियम से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लेते हैं, ये s के 2 और d का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4f14, and 4f14 configuration is also stable because it contains completely filled f orbitals. अब अगर हम यूरेनियम, इसका मतलब ल्यूटीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा +3. यूरोपियम में अगर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, इट बिकम्स 4f7. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4f7 बनेगा, 4f7 इज हाफ फिल्ड, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है. इसका मतलब यूरोपियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वो बनेगा +2. देन फाइनली गैडोलिनियम. गैडोलिनियम में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4f7 हाफ फिल्ड. सो गैडोलिनियम का +3 स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ 4f7 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. नाउ गोइंग टू द अगेन, इसमें जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, देन इट बिकम्स 4f4, दैट्स नॉट स्टेबल. अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, ये बनेगा 4f2, वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं है. तो इसमें 2, 4, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं बनती है. ठीक. नाउ एज पर एज सीरियम इज कंसीडर्ड, सीरियम का एक ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, दैट इज +4. वाई +4? इफ वी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स xenon कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस इट्स स्टेबल. गोइंग टू द ल्यूटीशियम. ल्यूटीशियम में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ल्यूटीशियम का +3 स्टेबल बनेगा बिकॉज ऑफ 4f14 कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल्स. यूरोपियम का +2 ज्यादा स्टेबल बनेगा. क्यों बनेगा +2 ज्यादा स्टेबल? क्योंकि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, ये बनेगा 4f7 कॉन्फ़िगरेशन. एंड गैडोलिनियम का +3 ज्यादा स्टेबल तब बनेगा
बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 4f7. नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस ऑन दिस साइड. लैंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? दैट इज सीरियम, जो होगा इसके साथ मैच. लैंथेनॉइड विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है यूरोपियम, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हाफ फील्ड. तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय यूरोपियम. Then leave the radioactive lanthanoid. Lanthanoid which has 4f7 electronic configuration +3. +3 में जिसका 4f7 होगा, ये भी +3 दिखा रहा है, ये भी +3 दिखा रहा है, लेकिन इसका 4f7 होगा, इसका 4f14 होगा. तो +3 में 4f7 होगा गैडोलिनियम का. Lanthanoid which has 4f14 electronic configuration +3 और 4f14 किसका बनता है +3 में? That is lutetium. Then we are left with only one point. ये मैं एंड पे क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन है रेडियो एक्टिव. इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी नहीं है. लैंथेनॉइड्स का जनरल जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है +3. प्रोमीथियम डज शो +3, लेकिन इन एडिशन टू दैट इसकी एक खास क्वालिटी है, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव. All lanthanoids are non-radioactive except one lanthanoid and that is promethium. तो radioactive lanthanoid होगा promethium. ठीक है, तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस बेसिस पे ये कुछ लैंथेनॉइड्स है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमने हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एक्सप्लेन किया. लैंथेनॉइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट सीरियम. क्यों +4 दिखाता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. लैंथेनॉइड विच कैन शो +2 दिखाता है यूरोपियम. क्यों दिखाता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4f7 एंड दैट्स स्टेबल, दैट्स हाफ फील्ड. Radioactive lanthanoid, only lanthanoid radioactive, that's promethium. Lanthanoid which has 4f7 configuration +3. +3 में 4f7 कौन दिखाता है? Known element, that's gadolinium. And last one 4f7, 4f14 में जो सबसे ज़्यादा +3 stable configuration बनता है वो बनता है lutetium का, because it becomes completely filled configuration. So this was the matching type. Again one more question. फिर से अगला सवाल भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन ही है. यहां से एलिमेंट्स और यहां से इनके कॉलम्स फिलअप करने हैं. अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में है. एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एलिमेंट विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मेटल इन MCO6 is element with highest heats of atomization is element with highest ionization enthalpy. So first of all, we should know variation of ionization energy. As we move across the period, ionization enthalpy increases because of increase in effective nuclear charge. So with increase in atomic number, ionization energy increase. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. हाँ, first ionization energy में irregular trends होते हैं because of SD transition. अब इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? उसके लिए हम इनके कॉन्फ़िगरेशन पे फिर से जाएंगे. अगर मैं निकल की बात कर लेता हूं, निकल होता है 3d8 4s2. क्रोमियम की बात कर लेंगे, इट इज 3d5 4s1. कॉपर इट इज 3d10 4s1 एंड जिंक इट इज 3d10 4s2. नाउ जो एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ सीरीज होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली कॉपर और जिंक. अब ये कह रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो इसका मतलब है वी हैव टू चेक कन्वर्जन ऑफ M पॉजिटिव टू M डाई पॉजिटिव. तो ये एक ऐसा एलिमेंट इनमें से होगा जिसका M पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और M डाई पॉजिटिव उससे भी कम स्टेबल होगा, और ये वाला कन्वर्जन ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा. इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा होगी. अब अगर हम देखेंगे
M positive configuration. Out of all these four elements, M positive configuration दो जगह stable होता है. First, it is chromium positive because of D5 configuration, and second, it is copper positive because of D10 configuration. अब सवाल है इन दो में से second ionization energy किसकी ज़्यादा होगी? Is it chromium or is it copper? डेफिनेटली इट्स कॉपर, क्योंकि कॉपर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम से कहीं ज़्यादा होता है, तो कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैच होगा कॉपर. एलिमेंट विथ हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है वी हैव टू कन्वर्ट M2 पॉजिटिव टू M3 पॉजिटिव. इसका मतलब ये ऐसा एलिमेंट होगा जिसका +2 हाईली स्टेबल है. अब +2 हाईली स्टेबल किसका है? इफ यू लुक एट ऑल द एलिमेंट्स, इट इज जिंक. जिंक का +2 बनता है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स व्हाई जिंक डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सेकंड आयनाइजेशन है हाईएस्ट एंथैल्पी जो है दैट्स फॉर जिंक. अब मेटल इन MCO6, ये कौन सा मेटल होगा? एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इफ आई राइट इट हियर, metal carbonyl complex is MCO6. Metal carbonyl complexes have got strong tendency to follow effective atomic number rule, that's Sidgwick's rule, that states जिन metal complexes में effective atomic number, total number of electrons in a complex equals to the एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नोबल गैस, वो कम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं. और कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस हैव गॉट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अब MCO6 में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल है, how we calculate it, that's equal to atomic number of metal minus oxidation state plus 2 into coordination number. This is the way by which we determine, we calculate effective atomic number. Since carbonyl complexes have strong tendency to follow EN rule, इसका मतलब है इनमें जो total electron cloud है, total electron count है, that should be equal to the atomic number of next to noble gas. 3D series के बाद जो noble gas आता है वो होता है krypton, जिसका atomic number 36. So 36 should be equal to Z atomic number ऐसे रखेंगे, निकलेगा, minus carbonyl complex में oxidation state 0 plus 2 into 6. तो इसका मतलब है 36, ये 12 यहाँ से आ जाएगा, is equal to Z. 36 minus 12, it's equal to, which means Z is equal to 24. तो ये वो मेटल होगा जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और 24 निकल का है कि क्रोमियम का है? इट इज़ डेफिनेटली क्रोमियम. तो मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्स में जो क्रोमियम होगा, जो MCO6 में M होगा, दैट्स क्रोमियम. वाई क्रोमियम? इज बिकॉज हमने यहाँ कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन की, हमें Z यानी एटॉमिक नंबर का वैल्यू जो आया दैट्स इक्वल टू 24. दिस इज फार्मूला फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो 24 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम. एंड द लास्ट वन, एलिमेंट विथ हाइस्ट हीट्स ऑफ एटोमाइजेशन. ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और हीट्स ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज़्यादा होते हैं. और जब हम हीट्स ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर लेते हैं, दे आर मैक्सिमम एट निकल. ये हो गया मैचिंग. सो एलिमेंट विथ हाइस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कॉपर. सेकंड हाइस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हाइस्ट होती है दैट इज जिंक. और MCO6 में जो मेटल यहाँ है दैट इज क्रोमियम. ये हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से निकाला, फॉर्मूला आपके सामने है. एंड फाइनली हाइस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है निकल में. तो ये था एक और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that's displayed on the board. Let's go for the discussion of this question. Electronic configuration of transition element X in +3 oxidation state is argon 3d5. What is its atomic number? तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कोई मेटल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बनाता है आर्गॉन
3d5, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसका मतलब 2 S से निकले हुए हैं और एक D से निकला हुआ है। अगर आप वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो ये बनेगा ना आर्गॉन 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3 electrons have been removed. It means 2 electrons have been removed from 4s and 1 electron has been removed from 3d. तो जब आप वो 3 electrons ऐड करोगे तो 2s में जाएगा, एक d में जाएगा, तो ये बनेगा आर्गॉन 3d6 4s2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सिंपल लॉजिक है, यहां से भी कर सकते हो। आर्गॉन 18 + 5 हो गया 23, + 3 ऐड कर लीजिए होगा 26। अब यहां से भी कर सकते हो। आर्गॉन 18 + 6 हो गया 24, + 2 हो गया 26। तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 26 है, यानी दिस इज गोइंग टू बी आयरन। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड इज 3d9 while as that of copper first is 3d10। कॉपर सेकंड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली इट इज 3d9, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और कॉपर फर्स्ट की है 3d10। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? कॉपर सेकंड इज मोर स्टेबल, copper second is less stable, copper first and copper second are equally stable. Stability of copper first and copper second depends upon the nature of copper salts। देखिए ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। We can say absolutely neither copper positive is stable nor copper dipositive is stable because it depends upon so many factors। जैसे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया, कॉपर पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, कॉपर पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन गिविंग कॉपर एंड कॉपर डाइपॉजिटिव। तो एक्वस मीडियम में कॉपर डाइपॉजिटिव है, बट जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज फॉर्म्ड है, इट सीम्स दैट कॉपर पॉजिटिव शुड बी मोर स्टेबल बिकॉज इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। So there are so many factors, जैसे कि टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है, as far as copper is considered, copper 2 positive is not stable with iodide. Copper 2 positive oxidizes iodide to iodine and that reducing copper to copper positive. But for fluorine +2 is more stable with fluoride. तो किसी केस में कॉपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा और किसी केस में कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कॉपर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये डिपेंड करता है कॉपर कौन सा सॉल्ट बनाता है, कॉपर किस मीडियम में है, वो डिसाइड करेगा एब्सोल्युटली विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। जैसे एक्वस मीडियम में बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, फ्लोराइड में कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, बट आयोडाइड में कॉपर 1 इज मोर स्टेबल। सो कॉपर +1 +2 स्टेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बिल्कुल आसान है। दिस क्वेश्चन आई थिंक इट्स अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, which of the following reactions is disproportionation reaction? As you know, disproportionation is that type of reaction in which same element simultaneously undergoes oxidation as well as reduction। तो एक oxidation state, one oxidation state splits into 2 oxidation states। मान लीजिए अगर ये M+2 है, ये M+1 में भी जा सकता है, M+3 में जा सकता है। When a single oxidation state splits into 2 oxidation states, it's called as disproportionation reaction। Let's go to the first one। Copper positive gives copper 2 positive and copper। Obvious है, यहाँ +1 to +2 oxidation भी हो रहा है, +1 to 0 reduction भी हो रहा है, तो ये disproportionation reaction है। गो टू द सेकेंड वन। अगर हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां देखेंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में है +6। जरा प्रोडक्ट साइड से जाएंगे, यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, सॉरी इट्स हियर स्मॉल n, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब देखिए +6 to +7 इट्स ऑक्सीडेशन, +6 to +4 इट इज रिडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहां पे +7 है, यहाँ पे भी +7 है, यहाँ पे +4 है, तो इसका मतलब खाली रिडक्शन हो रहा है और ये स्पेक्टेटर आयन है, इट इज़ नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे +7 है,
यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 है. सो यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंबाइन होके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्रपोर्शनेशन. तो आपको पूछा है क्वेश्चन में डिसप्रपोर्शनेशन कौन सा है, जहां पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्प्लिट होके दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना रहा है. दैट्स ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड. तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है 1 and 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अबाउट KMnO4, बहुत ही अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. व्हेन KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because. तो पोटेशियम परमैंगनेट जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर लेता है. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सल्फेट प्लस ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है, इसको एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, ये सरफेस को कवर कर लेता है. जो ये सरफेस को कवर कर लेता है, फर्दर रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड बिकम्स स्लो. तो जो ही इनिशियल स्टेज में रिएक्शन हो रही है स्लो बनता जाएगा, लेकिन जो ही KMnO4 का मैग्नीज 2 पॉजिटिव यानी MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड टू MnO4 नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीज डाई पॉजिटिव. जितना जितना मैग्नीज डाई पॉजिटिव बनता जाएगा, मैग्नीज डाई पॉजिटिव बिहेव करता है ऑटो कैटलिस्ट, ये इस रिएक्शन को ऑटो कैटलाइज कर लेता है. इनिशियल स्टेज में मैग्नीज 2 पॉजिटिव पहले बनता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके सरफेस के ऊपर बैठ जाता है, रिएक्शन स्लो बन जाती है. बट विथ टाइम जितना जितना मैग्नीज डाई पॉजिटिव बनता जाएगा, ये रिएक्शन को ऑटो कैटालाइज कर लेता है, इस वजह से रिएक्शन फास्टन हो जाती है. तो इसको थोड़ा सा अगर हीट भी करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालेंगे, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड देन दिस रिएक्शन गेट्स स्पीडेड अप. तो वो स्पीडेड अप इट इज बिकॉज ऑफ ऑटो कैटालिसिस ऑफ मैग्नीज डाई पॉजिटिव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है manganese dipositive behaves as an autocatalyst. Now, going to the next question. Transition elements show magnetic moment due to spin and orbital motion of the electrons. Definitely. Which one of the following metals have almost same spin only magnetic moment? इनमें से किनका magnetic moment same होगा? Magnetic moment उन्हीं का same होगा जिनमें number of unpaired electrons same होंगे. It's simple. Cobalt dipositive बनता है 3d7 configuration. क्रोमियम डाइपॉजिटिव बनता है 3d4 कॉन्फ़िगरेशन. मैग्नीज डाइपॉजिटिव बनता है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन. और क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनता है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन. ये कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर हम d7 में इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखेंगे, d7 कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, D4 contains 4 unpaired electrons, D5 contains 5 and it also contains 3 unpaired electrons. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट इज फर्स्ट एंड फोर्थ. आई थिंक इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3 है और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3 है. इट इज बिकॉज इफ यू गॉट D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, D3 में भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4. दिस विल बी द प्रिंटिंग मिस्टेक. तो इसका 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. चले, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है that reads like this. Let's keep it upper side. In the form of dichromate, chromium 6 is a strong oxidizing agent in acidic medium, but molybdenum जो इसी ग्रुप का है, molybdenum 6 and tungsten 6 are not ये strong oxidizing agents हैं. What is the reason responsible for that? तो क्रोमियम
मॉलिब्डेनम और टंगस्टन तीनों एक ही फैमिली के हैं, तीनों एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्रोमियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड +6 में या टंगस्टन ऑक्साइड +6 में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है। व्हाट इज द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसका जो रीजन रेस्पॉन्सिबल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल्स का अनलाइक पी ब्लॉक एक ये कैरेक्टर होता है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जो हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे +8 इज शोन बाय ऑस्मियम, रुथनियम, वो हेवियर मेटल्स है। सिमिलरली जो हेवियर मेटल्स यानी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनको रिड्यूस करना मुश्किल है। सो इफ वी कंपेयर क्रोमियम 3 पॉजिटिव विथ क्रोमियम 6 पॉजिटिव विथ टंगस्टन 6 पॉजिटिव, इसको रिड्यूस करना मुश्किल है, लेकिन इसको 3 पॉजिटिव में रिड्यूस करना और इसको 3 पॉजिटिव में रिड्यूस करना, टंगस्टन +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस करना मुश्किल है, लेकिन इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस करना आसान है, इस वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है। सो सिंपली इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो क्रोमियम का +6 लेस स्टेबल है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का +6 ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से उनको रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी द ऑप्शंस, क्योंकि इसमें यहां पे करेक्ट ऑप्शंस है तो मे बी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट हो। क्रोमियम 6 इज मोर स्टेबल देन मॉलिब्डेनम, नो। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का +6 ज्यादा स्टेबल है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Molybdenum 6 and tungsten 6 are more stable than chromium. Yes, perfectly, ये ज्यादा स्टेबल है। Higher oxidation states of heavier members of group 6 of transition series are more stable. Definitely, heavier members का higher oxidation state ज्यादा stable है। Lower oxidation state of heavier members of group 6 are more stable. No, this is incorrect. तो second और third जो है ये correct option है, तो second option इसका correct option होगा। Now, let's move to the next question. Next question जो हमारा है, that reads out like this. Which of the following lanthanoid shows +2 oxidation state beside characteristic state +3? As you know, lanthanoids का जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 ही होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +2 भी दिखाते हैं, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में एक बार कर चुके हैं। +2 वो दिखाते हैं जिनका +2 निकलने के बाद F7 या F14 बन सकता है। उनमें से पहला एलिमेंट है यूरोपियम और दूसरा एलिमेंट है यूटर्बियम। यूरोपियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f7 5d0 6s2, और यूटर्बियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4f14 5d0 6s2। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इट्स कन्वर्टेड टू 4f7 एंड इट्स कन्वर्टेड टू 4f14। सीरियम दिखाता है +4, तो ये 4f14 में, तो यूरोपियम +2 and ytterbium +2, these two are stable because after loss of 2 electrons they get converted into 4f7 and 4f14 configurations। तो इसका एक तो यूरोपियम और दूसरा ytterbium, that is 2 and 3, ये होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। Let's move to the next one. Transition elements form binary compounds with halogens. Definitely MX2 type compounds. Which of the following element will form MF3 type compounds also? MF3 compound कौन सा बनाएगा? वो एलिमेंट बनाएगा जिसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +3 किसका ज़्यादा स्टेबल होता है? Chromium definitely shows +3 oxidation state because of D3 configuration, or D3 configuration stable because of T2G3 configuration. Second one is cobalt. कोबाल्ट का +3 भी ज़्यादा स्टेबल होता है। कोबाल्ट के मेजॉरिटी कंपाउंड्स +3 में बनते हैं। कॉपर का +1 +2 वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड का, और निकल ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है +2 में। कॉपर
2 या +1 दिखाता है। क्रोमियम का सबसे ज़्यादा स्टेबल +3, कोबाल्ट का भी सबसे ज़्यादा स्टेबल +3। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन। assertion reason, that is a specialty about these questions। तो इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए हैं। मैचिंग टाइप, एक से ज़्यादा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस उसमें भी यूज़ किए हैं। assertion reason is the third type of question, special questions are there। assertion reason, ऑप्शंस पहले चेक कर दे। इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, it means option 1। Second, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। Third, assertion is true but the reason is false, both assertion and reason are false। Let's go to the statement। Copper 2 positive iodide is not known। ठीक, copper 2 positive oxidized iodine to iodide to iodine। Definitely if we go to copper 2 positive, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव या कॉपर 1 पॉजिटिव है उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज एसोसिएटेड विथ द नेचर ऑफ द सॉल्ट। कॉपर 2 पॉजिटिव अगर आयोडाइड के कांटेक्ट में आता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर लेता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, और कॉपर 2 पॉजिटिव खुद रिड्यूस होकर कॉपर पॉजिटिव में बनता है। इसका मतलब है अगर आपके पास क्यूप्रिक आयोडाइड होगा वो खुद ब खुद क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, रिलीजिंग आयोडीन गैस। ठीक है, दिस इज द रीजन। सो पहला असर्शन क्या था? कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन। डेफिनेटली अगर कॉपर आयोडाइड क्यूप्रिक आयोडाइड बनता भी है दैट स्पॉन्टेनियसली गेट्स कन्वर्टेड टू क्यूप्रस आयोडाइड, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडाइड के साथ ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, copper 2 positive oxidizes iodide to iodine। definitely copper 2 positive iodide को iodine में oxidize कर लेता है। इसका मतलब reason भी true है and reason is the correct explanation of assertion। both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation। so ये आएगा इसका question number option number 1, that's correct option। now let's move to the next question। next question जो हमारा है वो है फिर से assertion reason का। assertion है copper cannot liberate hydrogen from the acids because it has positive electrode potential। we have to see assertion and reason। as we know copper, all the first transition series elements have SRP values negative। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैं बात कर लेता हूं, सभी का एसआरपी नेगेटिव होता है। कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर आप देखोगे मेटल्स की मैं बात कर लेता हूं, जनरली मेटल्स का एसआरपी होता है नेगेटिव। लेकिन फ्यू एलिमेंट्स जैसे कॉपर है, मर्करी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनका एसआरपी होता है पॉजिटिव। Only those metals have the tendency to liberate hydrogen from acids जिनका SRP negative होता है या SOP positive होता है। So those elements have the tendency to liberate hydrogen gas from the acids which have positive SOP but negative SRP। So SRP should be negative। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉपर का जो SRP है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर एक्वस E0, ये होता है +0.34 पॉजिटिव होता है। अगर SRP पॉजिटिव है इसका मतलब इसको टेंडेंसी नहीं होगी टू रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स। जरा असर्शन देख लेते हैं, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सही स्टेटमेंट है, असर्शन करेक्ट है, बिकॉज इट हैज गॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका जो SRP है दैट इज पॉजिटिव, इट शुड हैव बीन नेगेटिव। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन with assertion reason। I think we have completed
द डी एंड एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में हमने एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की। तो जनरली ये लगता है डिफ़िकल्ट, बट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड एवरी कॉन्सेप्ट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, KMnO4, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर, splitting etc, everything is incorporated. Hope आपको ये help करेगा. Inshallah you will get the assignment and we will start within no time we will start the second chapter, that will be coordination compounds.